number 7. Dissolution of partnership firm. I think question number 5 is very much clear with you all people. Okay, now coming to question number 6. I hope so. Question number 6, 7 and 8 की columns आपने already ready करके रखे हैं. Okay. Number 1. Book value of machine is 50,000 which is taken over by partner Darsan for 55,000. Machine है 50,000 की. Darsan लेके गया मतलब partner लेके गया 55 में. Number first की entry pass करें. Realization account debit to machine account 50,000. Realization account debit to machine account 50,000. Being machines shown in the books of accounts. Being machines shown in the books of accounts. इसमें second entry. Darshan's capital account debit to realization 55,000. Darshan's capital account debit to realization 55,000. Being machine taken over by Darshan at the time of dissolution. Being machine taken over by Darshan at the time of dissolution. Number 2. Partner Bimal has accepted to pay bills payable of rupees 15,000. Partner Bimal ने बोला कि मैं पे कर दूंगा bills payable 15,000. The bills payable यहाँ पे. So that is the first entry. Bills payable account debit to realization 15,000. Bills payable account debit to realization 15,000. Being bills payable shown in the books of accounts. Being bills payable shown in the books of accounts. किसने पे किया? बीमल ने पे किया मतलब यहाँ पे पार्टनर ने पे किया. ओके, राइट ऑन द नेक्स्ट एंट्री इन दिस इटसेल्फ. Realization account debit to Bimal's capital account 15,000. Realization account debit to Bimal's capital account 15,000. 15. Being Bimal paid the bills payable at the time of dissolution. Being Bimal paid the amount of bills payable at the time of dissolution. Number 3. Past bad debts were written off rupees 11,000. पहले बैड डेब्ट्स था मेरा 11,000 था और रुपीज 6,000 मुझे मिल चुके हैं. अब मुझे यहाँ पे 6,000 मिल चुके हैं. पैसे मुझे मिले हैं. पैसा यहाँ से मिलता है. ओके, तो राइट ऑन द एंट्री. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,000. 11,000 की कोई एंट्री नहीं आएगी. 6,000 की 6,000 जो मुझे मिले उसी की एंट्री आएगी. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,000. 6,000. Being amount received from bad debts written off earlier. Being amount received from bad debts written off earlier. Number 4. Book value of sundry assets is 2,70,000 and realized rupees 2,27,000. 270 के sundry assets थे, 2,27,000 realized थे. That is the first entry. Realization account debit to sundry assets 2,70,000. Realization account debit to sundry assets 2,70,000. Being sundry assets shown in the books of accounts. Being sundry assets shown in the books of accounts. 2,27,000 realized loan. Second entry. Cash account debit to realization account 2,27,000. Cash account debit to realization account 2,27,000. Being sundry assets realized. Being sundry assets realized. Number 5. Sundry creditors rupees 60,000 paid at 25% discount.
क्रेडिटर्स 60 का 25% डिस्काउंट मैंने पे किया. Right on the first and paying this. Creditors account debit to realization account 60,000. Creditors account debit to realization account 60,000. Being creditors shown in the books of accounts. Being creditors shown in the books of accounts. $25% डिस्काउंट मैंने पेड अप किया, तो 60,000 का 25% दैट इज 15,000. तो 15 मैंने कम पे किया, मतलब 45,000 मैंने पे किया, कैश पे किया. सेकेंड एंट्री लिखो इसमें, कैश अकाउंट सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 45,000. Realization account debit to cash account 45,000. Realization account debit to cash account 45,000. Being creditors paid at the time of dissolution. Being creditors paid at the time of dissolution. Number 6, unrecorded tax paid rupees 5,000. मतलब लाइबिलिटीज में दिख नहीं रहा है, अब मैंने उसको पे किया. ओके, राइट ऑन द एंट्री. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. Realization account debit to cash account 5,000. Realization account debit to cash account 5,000. Realization account debit to cash account 5,000. Being unrecorded tax paid at the time of dissolution. Being unrecorded tax paid at the time of dissolution. Number 7, dissolution expense paid rupees 5,000. Okay, expense मैंने पे किया 5,000. पे किया 5,000. Okay, so right on the entry. Realization account debit to cash account 5,000. Realization account debit to cash account 5,000. Being dissolution expense paid at the time of realization. Being dissolution expense paid at the time of realization. Number 8, goodwill is not disclosed in the books but 20,000 realized from sale of it at the time of dissolution. Goodwill वहां पे नहीं है, लेकिन जब मैंने रियलाइज करने की बात की, फर्म को डिसॉल्व किया, तो मुझे गुडविल मिला 20,000 का, मतलब कैश मिला 20 का. Right on the entry, cash account debit to realization account 20,000. Cash account debit to realization account 20,000. Being amount of goodwill realized at the time of dissolution. Being amount of goodwill realized at the time of dissolution. Okay. Now I hope so कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 कॉलम बना के रखे होंगे. नहीं बना है, I am giving you 2 minutes more. Okay, make the column. First prepare the balance sheet for around 10 lines. Okay, realization account 10 lines, 10 to 15 lines. Partners capital account 8 to 10 lines. Cash bank account 8 to 10 lines. Come on, make the column fast. जिसके बन गए हैं वो ये सब को रिवाइज करते रहे, फॉर्मेट बोर्ड पे दिया, एक बार गो थ्रू करते रहे. जिसकी कॉलम रेडी है वो, जिसकी कॉलम बाकी है काइंडली प्रिपेयर द कॉलम फास्ट. I have told you even so many times कि आपको at least 2 hours you have to take out from a daily routine for accountancy and 2 hours for statistics. If you are following that, it's very good. If you are not, then you have to follow it if you want to score good marks in the board examinations. ठीक है.
पेपर विल नॉट बी दैट मच इजी इफ यू थिंक लाइक दैट कि ये पैंडेमिक सिचुएशन है तो पेपर बहुत इजी बनाएंगे. सो वेरी सॉरी टू से दैट. ठीक है, इट्स नॉट दैट मच इजी. इजी तभी होता है पेपर. द पेपर इज नेवर इजी. द पेपर इज इजी इफ यू आर प्रैक्टिसिंग. ओके, तो जो बोलते हैं पेपर टफ था, इट मीन्स उन्होंने पूरे साल में सम्स नहीं किए. और जिसका पेपर इजी आता है, लगता है, ओके, उन्होंने पूरे साल इतनी प्रैक्टिस की होगी कि उनको कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, पेपर उनके लिए बहुत इजी होता है. सो इजी एंड टफ नहीं होता. इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द प्रैक्टिस व्हिच यू हैव टू डू राइट नाउ. ओके, एग्जामिनेशन इज इन द मंथ ऑफ May 2021. Okay, so means we are having almost 7 months once again. अब अगर ये डेट फाइनल हुई है तो बात अलग है, नहीं तो दैट इज डिफरेंट थिंग. बट वी हैव प्रिपेयर्ड दैट के एग्जामिनेशन हमारी मार्च महीने में ही है. वैसे प्रिपरेशंस करेंगे बेटा. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7. आई होप सो कॉलम्स आर रेडी. Naresh and Saivil are partners of selling profit and loss in the purpose of 2:3. On 39/16 they have decided to dissolve the firm. firm को बंद करना है. On these dates the capitals was 6 lakh and 4 respectively. लिखो liabilities में कैपिटल. liabilities में कैपिटल पहले बैलेंस शीट बनाई ना, उसमें लिखो liabilities में कैपिटल. उसके नीचे नरेश इनर कॉलम 6 lakh. Saivil inner column 4 lakh. Outer column 10 lakh. Total liabilities of the firm is rupees 6 lakh. उसके नीचे लिखो liabilities में लिखो sundry liabilities 6 lakh. Sundry liabilities 6 lakh. उसके बाद आपको देखिए रखा है द बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 1 लाख. असेट्स में लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख. एसेट्स में लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख. कैश बैलेंस 1 लाख. असेट्स में लिखो कैश बैलेंस 1 लाख. असेट्स में लिखिए कैश बैलेंस 1 लाख. सो रिमेनिंग जो होगा मेरा बाकी का एसेट्स होगा. यू कैन से सन्ड्री एसेट्स लिख दो. एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स कितना होगा? लायबिलिटी 16 लाख है, उसमें से एसेट्स में 2 लाख आ गया, बाकी बचे 14 लाख. सन्ड्री एसेट्स लिख दो 14 लाख. सन्ड्री एसेट्स 14 लाख. आई होप सो इतना डन हो गया. मुझे बोला कि 50% रियलाइज, एसेट्स के 50% रियलाइज होते हैं. टोटल कर लिया मैंने बैलेंस के बोथ द साइड. It is 16 lakh. Capital 6 lakh, 4 lakh, 10 lakh. Sundry liabilities 6 lakh. Liabilities वगैरह 16 lakh. Assets में profit and loss 1 lakh. Cash balance 1 lakh. Sundry assets 14 lakh. हो गया 16 lakh. ठीक है. अब रियलाइज अकाउंट के अंदर पहले अपना बैलेंस शीट क्लोज करते हैं. पहले कैपिटल अकाउंट दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट पे लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. नरेश में 6 लाख, साइविल में 4 लाख. नरेश में 6 लाख, साइविल में 4 लाख. उसके बाद है सन्ड्री लायबिलिटीज. रियलाइज अकाउंट में क्रेडिट पे लिख दे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज 6 लाख. रियलाइज अकाउंट में क्रेडिट पे लिख दो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज 6 लाख. सीधा आउटर कॉलम में लायबिलिटी ट्रांसफर असेट्स में आना है. आपको दिया पहले प्रॉफिट एंड लॉस. लिख दो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस. असेट्स में दिया है डेबिट साइड पे आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस. रेशियो क्या है? 2:3. नरेश में 40,000, सेविल में 60,000. 40,000 60,000. उसके बाद दिया है कैश अकाउंट. कैश में डेबिट साइड पे लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख. कैश के डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख. ओके. उसके बाद दिया सन्ड्री एसेट्स. रियलाइज अकाउंट में डेबिट साइड लिख दो टू सन्ड्री एसेट्स 14 लाख आउटर कॉलम में. रियलाइज के डेबिट साइड लिख दो टू सन्ड्री एसेट्स 14 लाख आउटर कॉलम में.
ओके, जस्ट वेट ए व्हाइल। इन दैट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्सपेंस देके रखा है, पर मेरे टेक्स्ट बुक में नहीं है। जस्ट लेट मी चेक वंस। आई होप सो ट्रांसफर आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे हमें ट्रांसफर यहाँ पे करना है। स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी बुक, yes. ओके, 50% रियलाइज हुई है। ओके, हमने सब ट्रांसफर पे कर दिया। असेट्स आपको दिख रहा है वहां पे 14 लाख का। ओके, आ जाओ रियलाइज में क्रेडिट साइड पे लेके बाय कैश। रियलाइज अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखो बाय कैश, टिल द टाइम ये ओपन होता है मैं सब टैली करता हूं। बाय कैश लिखो यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स 7 लाख, सीधा होता कॉलम में बाय कैश, उसके नीचे सन्ड्री एसेट्स 7 लाख। ओके, क्रेडिट हो गया। दूसरा आइटम पास करें कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू रियलाइज अकाउंट ब्रैकेट में एसेट्स 7 लाख। टू रियलाइज कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू रियलाइज अकाउंट ब्रैकेट में एसेट्स 7 लाख। देन 50% रियलाइज कर दिया। सन्ड्री लायबिलिटीज को जो तुमको देखे रखा है 6 लाख, वो तो मुझे कंपलसरी पे करना ही है। रियलाइज के डेबिट साइड पे लिखो टू कैश, रियलाइज अकाउंट के डेबिट साइड टू कैश, उसके अंडर में लिखो सन्ड्री लायबिलिटीज 6 लाख, उसके अंडर में लिखो सन्ड्री लायबिलिटीज 6 लाख। जस्ट वेट, मेरी बुक ओपन हो जाए, पीडीएफ फाइल जो है। This is question number 7. Visual expense दिया 1 लाख रुपीज का। ओके, टू कैश सन्ड्री लायबिलिटीज 6 लाख, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1 लाख। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1 लाख, आउटर कॉलम में 7 लाख। यहां पे लिखा टू कैश सन्ड्री लायबिलिटीज 6 लाख, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1 लाख, आउटर कॉलम में 7 लाख। दूसरी एंट्री यहां पे कैश में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लायबिलिटीज, बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लायबिलिटीज, $7 लाख। ओके, अब और तो कुछ है नहीं, क्लोज कर लेते हैं। ये साइड था 14 लाख, 7 लाख, 21 लाख, टोटल ऑफ डेबिट साइड 21 लाख। वो साइड ज्यादा है, लिख दो 21 लाख ऑन बोथ द साइड, 21 लाख ऑन बोथ द साइड। आप क्रेडिट में देख रहे होंगे तो आपको लायबिलिटीज, सभी लायबिलिटीज मिल रही है 6 लाख और सन्ड्री एसेट 7 लाख, 13 लाख माइनस, तो 21 लाख माइनस 13 लाख मतलब 8 लाख। देखो क्रेडिट साइड पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब आपने लॉस किया, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नरेसेबल। ओके, नरेसेबल 8 लाख का डिफरेंस है आपका, पार्टनर को 2:3 में नरेसेबल में 3 लाख 20 एंड 4 लाख 80।
Naresh 3,20,000, Seville 4,80,000. Naresh 3,20,000, Seville में 4,80,000, आउटर में 8 लाख. ओके, इक्विटी में ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन लॉस. पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट साइड टू रियलाइजेशन लॉस. नरेश के कॉलम में 3,20,000, सेविल के कॉलम में 4,80,000. नरेश के कॉलम में 3,20,000, सेविल के कॉलम में 4,80,000 टू रियलाइजेशन लॉस. 3,20,000, 4,80,000. अब नरेश को क्लोज करते हैं. ओके, नरेश का क्रेडिट है 6 लाख, तो ज्यादा है क्रेडिट साइड. टोटल लिखे नरेश में बोथ द साइड 6 लाख. टोटल ऑफ नरेश ऑन बोथ द साइड 6 लाख. ओके, 6 लाख में से डेबिट साइड अमाउंट है एक 40,000 और एक 320, मतलब 360 माइनस किया तो 2,40,000 बचा. लिखो यहाँ पे डेबिट साइड में टू कैश नरेश की कॉलम में 2,40,000. टू कैश नरेश की कॉलम में 2,40,000. नरेश बैलेंस कर दिया. ये अमाउंट रख के कैश में क्रेडिट पे लिखो. बाय नरेश कैपिटल 2,40,000. कैश में क्रेडिट साइड बाय नरेश कैपिटल 2,40,000. डन. अब सेविल को प्लस करते हैं. अब तो सेविल का डेबिट साइड आ रहा है. डेबिट में आपको 50,000 और 4,80,000 मिल रहा है. क्रेडिट पे ओनली 4 लाख है. तो टोटल लिखो ऑन बोथ द साइड 5,40,000. सेविल टोटल ऑन बोथ द साइड 5,40,000. 5,40,000. अब उसका क्रेडिट में अमाउंट कम है, 4 लाख ही है. 1,40,000 क्रेडिट में कम है. लिखो वहां पे बाय कैश सेविल में 1,40,000. बाय कैश सेविल में 1,40,000. ओके, वो ट्रांसफर कर दो कैश में डेबिट साइड टू सेविल्स कैपिटल 1,40,000. कैश में डेबिट साइड टू सेविल्स कैपिटल 1,40,000. ओके, अब आप अपना कैश अकाउंट टैली करेंगे. टोटल आएगा आपका बोथ द साइड 9,40,000, 9,40,000. टोटल ऑन बोथ द साइड 9,40,000, 9,40,000. आई होप सो पूरा सम कैसे करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है. अब चैप्टर का बोर्ड वेटेज इस साल के लिए तो हमें पता नहीं है. बाकी बेसिकली चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7 मिला के 27 मार्क का पूछा जाता है. ओके, 8 मार्क के 2 सम फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 एक, चैप्टर नंबर 6 एक. इसमें 6 मार्क के सम, 3 मार्क के 3 मार्क की एंट्रीज सेंटेंस फॉर्मेशन वाले जो हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 में किया वैसे वाले. ये मैं करवा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा नॉलेज बढ़ जाए. ओके, बाकी बेसिकली ये सब पूछे जाते नहीं है. स्टिल सॉल्व कर लेते थोड़े बहुत, एक आइडिया आ जाएगा फर्दर स्टडीज के लिए. सो अब इस साल तो आपको वेटेज में से निकाल ही दिया चैप्टर. स्टिल विल सॉल्व इट बिकॉज बोर्ड ने अपना वेटेज दिया नहीं है तो हमें सॉल्व पे करना पड़ेगा. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 वी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. क्वेश्चन नंबर 8 के आपने कॉलम्स अगर रेडी करके रखे होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं रखे इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर we'll be solving question number 8. Prepare the columns for balance sheet, realized account, partners capital account and cash account. Balance sheet 15 lines का around, realized account भी same 15 to 20 lines का, partners capital account 10 lines का, cash bank account 10 lines का. Okay? Thanks for the cooperation and support. Stay home, stay safe and keep learning. Have a nice day.